Last class we have covered the basic concept of working capital. In today's lecture, we move further to the factor affecting the working capital or the determinants of working capital. For any organization, as you know now, the working capital is the backbone to run the business on the daily basis. There are n number of factors which going to affect the requirement of working capital. Here are the factors affecting working capital like this. First is the basic nature of the business. The basic nature of the business, it means whether our business is like there are certain goods which always sold on cash, and some business are manufacturing, some business are in retailer, etc. So it depends on the nature of the business ki what type of how much working capital is required. If your every goods and services are sold on cash, it means the working capital requirement is low. But if you are a retailer, you are a manufacturer, then working capital requirement may be increased, because not your all goods and services are sold on cash always. You are giving sometime credit also. Then the business cycle fluctuation also affect, like boom, recession. During boom, your requirement become low, because you are converting your goods into cash frequently. But in case of recession, it's not possible. You need to a working capital more to maintain your business. Then the seasonal operations are there. सीजन के टाइम पे आपने देखा होगा आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है वर्किंग कैपिटल. ठीक है. देन द मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस इज देयर. अगर मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इट मीन्स आपको डिस्प्ले में बहुत सारा सामान रखने की ज़रूरत पड़ेगी. दैट मीन्स यू नीड अ मोर वर्किंग कैपिटल बिकॉज यू नीड अ मोर करंट एसेट. एक्सक्यूज मी. फाइन. आपने देखा होगा इन जनरल, आप लोग अगर मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, तो आप कौन सी शॉप में जाते हैं जहाँ पर आपको वैरायटीज़ ज़्यादा मिले. ठीक है. जहाँ पर आपको डिस्प्ले में आइटम ज़्यादा दिख रहे हैं. तो मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है आप लोगों की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर देती है. देन द क्रेडिट पॉलिसी. What type of credit policy are you adopting? If you have a credit terms very liberal to your customer, it means your collection procedure has become very slack, very easy. तो बुक डेप्ट क्या होंगे? इट गोइंग टू बी इंक्रीज. सो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई. बट इफ़ योर क्रेडिट पॉलिसी इज़ वेरी टाइट, आप हर किसी को नहीं दे रहे हैं क्रेडिट, देन आपके बेड डेट होने के चांसेस भी कम होंगे. तो इट मीन्स योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिकम लो. देन द प्रॉफिट लेवल. इफ़ यू हैव अ हाई प्रॉफिट लेवल, it means you require a low working capital. Ultimately the concept is working capital क्या है? वो अमाउंट जो लॉन्ग टर्म से आप फंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. अगर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आपस में मैच हो गई, तो इट मीन्स आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि करंट लाइबिलिटी इज एक्टिंग एज अ फाइनेंस सोर्स एंड करंट एसेट इज अ यूसेज ऑफ द फंड. फाइन. जितना यूज हो रहा है उतना ही आपको फंड मिल जा रहा है. करंट एसेट करंट लाइबिलिटी इक्वल हो रहे हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो प्रॉफिट अगर है हाई, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी नहीं. ओके. Then the level of taxes, if your level of taxes is increases, if it increase, the more working capital you required. Then manufacturing or production cycle you can say. अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, जिसको हम कहते हैं कि द टाइम लैग बिटवीन योर प्रोडक्शन एंड द सेल, आपने प्रोड्यूस किया और सेल करने तक का जो टाइम लैग है बीच में, उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि उस समय तो कोई कैश जनरेट नहीं हो रहा है. ठीक है. अगर आपकी ये प्रोडक्शन साइकिल लंबी हुई, तो इट मीन्स यू नीड अ मोर वर्किंग कैपिटल. देन योर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज आल्सो डिटरमाइन your working capital requirement. If you are utilizing your resources better way or very optimally, then means you are using your resource very wisely. At that time you need a less working capital. Otherwise you need a more working capital. Then it's a labor intensive or it's a capital intensive firm.
If it is a labor intensive, you need more working capital, and if it's a capital intensive, you don't need more working capital. Then inventory turnover is there. If you have a high inventory turnover, you need a less working capital, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री बहुत जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही है, सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, तो यू डोंट नीड मोर वर्किंग कैपिटल. Then the growth and expansion. If you have any plan for the growth, it means you need a more working capital for running your business. Then the price level changes of inputs. If price is high, you need more working capital for same amount of current assets at that time. अगर input के prices बढ़ गए, आपकी working capital requirement भी बढ़ जाएगी for the same level of input. That's why. Then the production policy. आपने देखा होगा प्रोडक्शन पॉलिसीज हमारी क्या होती हैं, दो टाइप की होती है. एक होती है आप लोगों की विच गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड. And one production policy is where you are continuously producing at the same quantity irrespective of the demand. It means it's a steady production policy. तो अगर steady production policy है, you are continuously producing the things, तो inventory आपके पास ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो it means your working capital requirement is more. In case of variable production policy, you are producing according to the demand only, then your working capital requirement become less. Hope you understand all this concept very well. कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी यूसेज पे डिपेंड करता है, हमारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस सिनेरियो में ऑपरेट कर रहे हैं. ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स इट इज़ अ गैप, यू कैन से, कि सेल्स और और जो हम सेल से कैश रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का गैप क्या है. मीन्स कैश और दोबारा कैश में उसे कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, उस पूरी साइकिल को जो हम कहते हैं वर्क ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. मीन्स देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम कैश टू सप्लायर टू इन्वेंट्री टू योर रिसीवेबल एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू बैक इन कैश. It is called your operating cycle. See here. See here. There is a cash. We start with the cash. Okay. Then this cash converted into raw material. You purchase the raw material. Then this raw material converted into work in progress. Work in progress means जो raw material आपने खरीदा है वो अभी पूरी तरीके से फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसमें अभी आधा काम हुआ है. देन इट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स. उसके बाद आप इसे सेल करने गए. अब अगर आपकी सेल कैश में है तो इट ऑटोमेटिकली कम इनटू कैश, और अगर आपकी सेल्स क्रेडिट में हो रही है तो आपके डेटर्स क्रिएट होंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होंगे, एंड व्हेन दे कन्वर्टेड इनटू कैश देन इट बिकम कंप्लीट. इट मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इट्स अ कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश अगेन. First stage is conversion of cash into inventory, second inventory into receivable, and third stage is receivable into cash. Clear? In this operating cycle, अगर operating cycle आपकी increase हो गई तो it means your working capital requirement is also increases. Now see this diagram. It become clear to you. First of all, you need to purchase. ओके, यू नीड टू परचेज. आपने परचेज किया आइटम, आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स को कन्वर्ट किया, उसका कन्वर्जन पीरियड, ठीक है. इसमें आपने क्या किया, पेमेंट करी. फाइन. आफ्टर मेकिंग पेमेंट आपने जो है यहाँ पर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है. आपकी इन्वेंट्री क्या हो रही, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है. देन यहाँ से आपकी इन्वेंट्री क्या हो गई, सेल हो गई. अब चाहे वो सेल कैश हो चाहे क्रेडिट, अगर कैश हो गई देन इट इज़ ओके, और अगर क्रेडिट हुई तो आगे आपके लिए क्या हुआ, कलेक्शन का टाइम आया. तो इट मीन्स इट इज़ अ रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड. मीन्स क्रेडिट सेल से
कैश में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगेगा वो है आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, और परचेज से सेल में कन्वर्ट होने का टाइम कितना है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। नाउ इफ अगर आपने जो प्रोडक्ट अपने बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आपने लिया है वो उधार में लिया, ठीक है, क्रेडिट में लिया, तो इट मीन्स जब तक परचेज होगी, परचेज करके आपने जब तक उसकी पेमेंट नहीं कर दी तब तक का जो पीरियड है वो क्या होगा, पेबल पीरियड होगा, पेबल डिफर्ड पीरियड, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बिल्स पेबल हो गए आपके, ये फाइनेंस का काम कर रहा है आपके लिए यहाँ पर। और ये जो पीरियड है पूरा जब पेमेंट से लेके आपका दोबारा कैश में कन्वर्ट होने तक का, तो ये है कैश कन्वर्जन साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, आपने यहाँ पर क्या किया, कैश को यूटिलाइज कर लिया ना आपने। अब दोबारा कैश कन्वर्ट कब हो रहा है, जब आपका कलेक्शन हो जा रहा है। तो ये क्या है आपका कैश कन्वर्जन साइकिल। और पूरी ओवरऑल साइकिल अगर हम देखेंगे तो इट बिकम अ ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हो गया कि आपने जब रॉ मटेरियल परचेस किया और उसको जब आपने कैश में कन्वर्ट किया, तो वो पूरी साइकिल ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है। बट अगर उस ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल से अगर आपने परचेस क्रेडिट में किया है और जब तक उसकी पेमेंट नहीं करी उतना टाइम आपको फाइनेंस के लिए मिली है ना वो, ठीक है, जब आपने उसको डिडक्ट कर दिया तो इट मीन्स यू गेट अ नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ see these formulas because you get the numerical from this part also. Hope you understand with the help of diagram. This is just like your ratios. आपने अपनी पहली क्लासेस में रेशियोज पढ़े हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग है। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या थी, आपकी इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, डेटा कन्वर्जन पीरियड को मिला के था। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड क्या था, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड का कन्वर्जन पीरियड। ओके, अब आप ये कन्वर्जन पीरियड कैसे निकाल रहे हैं, मीन्स इन हाउ मेनी डेज इट इज कन्वर्टेड, इट टेक टू कन्वर्ट। ओके, तो रॉ मटेरियल के लिए आप कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंटू 360 डेज, अगर आप डेज की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन, आपने कितना कंजम्पशन किया है, ठीक है। सेम इज with work in progress inventory into 360 days divided by cost of production, then again finished goods की inventory और उसकी cost into 360 days, then the debtor conversion period। अब यहाँ आप सेल कौन सी लेंगे, which is a credit sale at cost, क्योंकि हम लोग जब रूल होता है कि हम प्रॉफिट्स पहले नहीं शो करते हैं, आपको याद होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम कॉस्ट को देखते हैं, प्रॉफिट जब रियलाइज हो जाए तब हम कहते हैं दैट इट बिकम अ प्रॉफिट, फाइन, दैट्स वाई क्रेडिट सेल हमेशा आपकी कॉस्ट में दिखाई जाती है। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल आपके लिए क्या क्रिएट करती है, डेटर्स क्रिएट कर रही है, तो डेटर्स इंटू 360 डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल, देन क्रेडिटर्स इंटू 360 डिवाइडेड बाई योर क्रेडिट परचेज। नाउ नेट ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेबल डिफर्ड पीरियड, मीन्स जितने टाइम के लिए आपने अपनी पेमेंट को लेट किया है उसे आप माइनस कर रहे हैं, तो आपकी नेट ऑपरेटिंग साइकिल आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द मेथड और अप्रोचेस फॉर एस्टिमेटिंग योर वर्किंग कैपिटल, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल, इट मीन्स इन दिस अप्रोच आप जो है एज्यूम करते हो कि आपकी हायर सेल लेवल कितना होगा और उसका एक फिक्स परसेंटेज आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर पास्ट एक्सपीरियंस कि ऑन एन एवरेज हमारा 10% हमेशा सेल का वर्किंग कैपिटल रहता है, तो इट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग वर्किंग कैपिटल बिकम द 10%। ओके, देन वर्किंग कैपिटल एज अ percentage of your total asset or a fixed asset according to your past experience, here you decide कि total आपकी current asset क्या है, उसके बेसिस में आप अपनी नेट वर्किंग कैपिटल जो है डिसाइड करते हैं, उसकी एक फिक्स परसेंटेज आप निकालते हैं, उस बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है, और उसके बेसिस में आप डिसाइड करते हैं, कहते हैं कि आपकी फिक्स एसेट अगर 100 होगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल 20% है, तो इट मीन्स अब आपकी अगर फिक्स एसेट जो है 200 हो गई तो आपकी वर्किंग कैपिटल उसकी 20% ही रहेगी।
ठीक है, 200 का फिर 20% आपकी आ गई। इस तरीके से आप अपनी वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अ फर्म इज मेंटेनिंग 20% ऑफ इट्स टोटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट। एक्सपेक्टेड टोटल एसेट कितनी है इसकी, 50 लाख इन द नेक्स्ट ईयर। तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी आपकी, 20% ऑफ 50 लाख दैट इज 10 लाख। ओके, देन वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल पे बेस आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे होगी वो मैं आपको अभी न्यूमेरिकल के तरह बताऊंगी, न्यूमेरिकल की हेल्प से। ठीक है, मीन्स आप अपनी पूरी वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं, अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट को एनालाइज करके अलग अलग कन्वर्जन पीरियड्स को एनालाइज करके आप बताते हैं कि हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। देन यू कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उस फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो आप पहला स्टेटमेंट बनाते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बेसिस में भी आप अपनी वर्किंग कैपिटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ here's the numerical of working capital on the basis of operating cycle. In this class I just show you the numerical. In next lecture I will show how we are solving this type of problem. Okay, see the numerical, try in your home. The performer of cost sheet of a company provide following data. I hope you remember the cost sheet. आपने अपने previous semesters में cost sheet पढ़ी है। The cost sheet जो है आपको हर प्रोडक्ट के बारे की कॉस्ट बताती है, अपने प्रोडक्ट अपनी गुड्स की कॉस्ट बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट जो है कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की क्या है, रॉ मटेरियल 52 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर 19.5, ओवरहेड 39, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ रही है 110.5। एंड जब आप इसमें प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं 19.5, यू विल गेट the sale price of rupees 130.0. Now the additional information. In this additional information they give average raw material in stock 1 month. ठीक है, आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है अपने रॉ मटेरियल के लिए। आपको वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हाफ मंथ का टाइम मिलता है, आप अपने हाफ मंथ के लिए उसे मेंटेन करते हैं। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर मीन्स जो आपके सप्लायर हैं आपको कितने मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं, 1 मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं। मीन्स आप मटेरियल यूज करिए, आफ्टर 1 मंथ यू नीड टू पे। एंड क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, आप जितना अपने डेटर्स को दे रहे हैं 2 मंथ का दे रहे हैं। द टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस मीन्स कितना टाइम आप अपने वेजेस को डिले कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना डिले आप कर रहे हैं आपकी करंट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और वो आपका फाइनेंस का काम करती है, क्योंकि उस समय आप वो फाइनेंस कहीं और यूज कर सकते हैं। वो है आपका 1.5 वीक। देन अदर ओवरहेड्स 1 मंथ। एंड आपकी जो सेल होती है उसमें 1/4 सेल इज ऑन कैश बेसिस। अब हमें यहाँ पर कैश बेसिस की सेल की ज़रूरत नहीं है, हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए तो, क्योंकि कैश तो कैश में कन्वर्ट हो गया है। ओके, हमें यहाँ चाहिए क्रेडिट सेल, तो इट मीन्स 3/4 इज योर क्रेडिट सेल। नाउ द कैश बैलेंस इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1,20,000 इज अ कैश बैलेंस दैट ऑलवेज दे मेंटेन। देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट showing working capital need to finance the level of activity 70,000 यूनिट। अब आपको ये सारी डेटा जो दिया गया है वो आपको 1 यूनिट का दिया है और आपको बताना है कि 70,000 यूनिट अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या उसका लेवल क्या होगा। फाइन, एंड यू आर एज्यूमिंग दैट आपके 70,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में देयर इज नो चेंज इन योर वेजेस, ओवरहेड, एवरीथिंग। फाइन, नाउ ये न्यूमेरिकल आप समझिए, आपको जो मैंने फॉर्मूलेस बताए वो देखिए और बेस्ड ऑन दैट ट्राई इन योर होम। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द डे।